ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીને હું છું લુબના। અમદાવાદની નેશનલ સ્કૂલની ઘટનાને લઈને વિરોધ થઈ રહ્યો છે। મારામારીની ઘટના મામલે એબીવીપીનો વિરોધ। સ્કૂલમાં સિક્યોરિટી અને બાઉન્સર રાખવા માટે માંગ કરવામાં આવી છે। સ્કૂલમાં મનોચિકિત્સક રાખવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે સમગ્ર ઘટના સામે આવ્યા બાદ હવે તેને લઈને વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। મારામારીની ઘટના મામલે એબીવીપીનો વિરોધ છે। ઉલ્લેખનીય છે કે સ્કૂલમાં સિક્યોરિટી અને બાઉન્સર પણ રાખવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે। तो नेशनल स्कूलनी जे घटना सामे आवी हती तेने लईने विरोध थई रह्यो छे। उल्लेखनीय छे के मनोचिकित्सक पण स्कूलमां होवो जोईए तेवी पण मांग करवामां आवी रही छे। आ पहेला पण आ प्रकारनी घटनाओ छाशवारे अमदावादमां सामे आवी चूकी छे, त्यारे स्कूलमां सिक्योरिटी अने बाउन्सर राखवामां आवे, साथे मनोचिकित्सक राखवामां आवे तेवी मांग हाल करवामां आवी रही छे। तो नेशनल स्कूलनी घटनाने लईने विरोध थई रह्यो छे। उल्लेखनीय छे के वालीओ पण स्कूलमां पहोंच्या छे। मारामारीनी समग्र घटना सामे आवी हती ते बाद एबीवीपी द्वारा पण विरोध करवामां आवी रह्यो छे। आ प्रकारनी वधती घटना छे ते चिंतानो विषय छे। स्कूलमां मनोचिकित्सक राखवामां आवे तेवी पण मांग। अन्य समाचार सूरतथी सामे आवी रह्या छे। घी, दही अने गोळ खाता पहेला सावधान रहेजो। घी, दही अने गोळना 6 नमूना सब स्टाન્ડર્ડ जाहिर करवामां આવ્યા છે। तो सूरत मनपाना आरोग्य विभागे करी हती खाद्य पदार्थोनी तपास। विविध एकमों परथी लेवाया हता सेम्पलो। लेबोरेटरी रिपोर्टमां भेड़सेड़ करी होવાનું સામે આવ્યું છે। જ્યોતિરાદિત્ય ફૂડ્સ અને અક્ષર ઘીના ઘીમાં વનસ્પતિ ફેટની ભેળસેળ કરવામાં આવી હતી। અલ્પેશ સાવલિયાના ભેંસના ઘીમાં પણ ભેળસેળ આવી હતી સામે। તો રેલવે સ્ટેશન સામેની આકાશ હોટલના દહીંના નમૂના ફેલ થયા છે। કૃષ્ણા સુપર સ્ટોરના ગોળમાં પણ હાનિકારક રંગની ભેળસેળ હોવાનું સામે આવ્યું છે। તો ન્યૂ ધનલક્ષ્મી સ્ટોરના ગોળમાં સિન્થેટિક્સ કલર મળી આવ્યો છે। આરોગ્ય વિભાગે સંબંધિત વેપારીઓ અને સંસ્થાઓને નોટિસ આપી છે। તમામ સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે। સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરનારાઓ સામે ઝીરો ટોલરન્સની ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે। સુરતમાં નકલી ઘી, નકલી માખણ, નકલી પનીર બાદ હવે નકલી દહીં અને ગોળના નમૂના સામે આવ્યા છે। કારણ કે આરોગ્ય વિભાગે તહેવારોને લઈને આ નમૂના લીધા હતા, જેમાં દહીં અને ગોળના નમૂના ફેલ ગયા છે। આપણી સાથે આરોગ્ય ફૂડ સેફ્ટી અધિકારી બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ છે। સીધા વાત કરીએ, બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ, કેટલા સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા અને જે સેમ્પલ લીધા એમાં કઈ વસ્તુમાં શું સામે આવ્યું? હું બીઆર બ્રહ્મભટ્ટ, ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર, સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન। ડેપ્યુટી કમિશનર હેલ્થ એન્ડ હોસ્પિટલ સાહેબ અને આરોગ્ય અધિકારીની સીધી સૂચનાના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત મહાનગરપાલિકામાં ખાદ્ય ચીજોનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરતી સંસ્થાઓમાંથી ગત ઉત્તરાયણના તહેવારને ધ્યાનમાં લઈ ઘી, ગોળ, તલ, ચીકી વગેરેના નમૂના લેવામાં આવેલ, જે પૈકી 6 નમૂના સબ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયેલ છે। સાહેબ, ઉત્તરાયણને લઈને સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, રિપોર્ટ આવ્યો છે, પણ કદાચ ઉત્તરાયણને ગયા 1 અઠવાડિયું થયું। આ તમામ વસ્તુ લોકો આરોગી ગયા છે, તો આ કેટલા અંશે યોગ્ય? આપણે નમૂના તો પહેલાં જ લઈ લીધા હતા, પણ રિઝલ્ટ થોડાક લેટ આવ્યા। પણ હવે એવી તકેદારી રાખવામાં આવશે કે નમૂના જરાક વહેલા લેવામાં આવે। જે નમૂના ફેલ ગયા છે એ તમામ સંસ્થાઓ સામે કયા પ્રકારની કાર્યવાહી? જે નમૂનાઓ ફેલ ગયેલા છે તે સંસ્થાઓ સામે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ પ્રમાણે કાર્યવાહી કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। બિલકુલ, આ હતા આરોગ્ય અધિકારી। તેમનું સીધું કહેવું છે કે ઉત્તરાયણને લઈને સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, કારણ કે ઘી, ગોળ અને દહીં આ તમામ વસ્તુઓના અલગ અલગ જગ્યાએથી સેમ્પલ લીધા હતા। તેમાં કહી શકાય કે મોટા પ્રમાણના સેમ્પલો ફેલ ગયા છે, જેને લઈને હવે જે દુકાનોના સેમ્પલ ફેલ ગયા છે તે તમામ દુકાનના માલિકો વિરુદ્ધ ફૂડ સેફ્ટી એક્ટ મુજબ કાર્યવાહી અને દંડની જોગવાઈ છે તે પ્રમાણે કામગીરી કરવામાં આવશે। કેમેરામેન જીગર ગોગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત। અમરેલીમાં 4 પગનો આતંક સામે આવ્યો છે। ખાંભાગીરના નાનીધારી ગામે ઘરમાં ઘૂસ્યો દીપડો। દીપડો રહેણાંક ઘરમાં ઘૂસી જતા અફરાતફરી। દીપડો ઘરમાં ઘૂસી જતા પરિવારે ઘરનો દરવાજો બંધ કર્યો। વન વિભાગને જાણ કરતા મેગા ઓપરેશન હાથ ધરીને દીપડાનું રેસ્ક્યુ કર્યું। તો 1.5 કલાકની જહેમત બાદ વન વિભાગે ટ્રેન્ક્યુલાઇઝરથી પાંજરે પૂર્યો છે। દીપડો પાંજરે પૂરાઈ જતા ગ્રામજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે। પરિવારની સમય સૂચકતાથી જાનહાનિ ટળી છે। 4 પગનો આતંક અમરેલીમાં યથાવત। 8:45 દીપડો મારા ઘરે આવી અને રૂમમાં જતો રહ્યો છે। પછી ગામ લોકો ભેગા થતા અમે દરવાજો બંધ કરી વન વિભાગને જાણ કરેલ, જેથી વન વિભાગ અહીંયા આવી અને અત્યારે દીપડાને પકડવાની કાર્યવાહી કરી રહી છે। અમરેલીના ધારીના હાલરિયા ગામમાં સાવજો પ્રવેશ્યા। મોડી રાત્રે ગોપાલ ગૌશાળા નજીક સિંહો આવતા
ગૌશાળાની અંદર ગાયોમાં અફરાતફરી મચી. ગૌશાળાના દરવાજા બંધ હોવાથી સિંહો અંદર પ્રવેશી શક્યા નહીં. સિંહો તેમજ ગૌશાળાના લાઈવ સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. શિકાર નહીં થતા સિંહ ત્યાંથી નીકળતા જોવા મળ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે ગૌશાળાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં જોઈ શકાય છે કઈ રીતે સિંહ ત્યાંથી નીકળી રહ્યા છે. ધારીના હાલરિયા ગામમાં 2 સાવજો પ્રવેશ્યા હતા. લોકોમાં ડરનો માહોલ પણ છે. મોડી રાત્રે ગોપાલ ગૌશાળામાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ. રાજન જોડાય છે ફોન લાઈન પર વધુ માહિતી આપવા માટે. રાજન, આ સમગ્ર ઘટના વિશે શું વધુ માહિતી છે? લુબના અમરેલી જિલ્લાના જે ગીર કાંઠાના ગામો છે ત્યાં સતત આ પ્રકારની ઘટનાઓ બને છે અને એક રીતે કહી શકાય કે લગભગ દરરોજ કોઈના કોઈ ગામમાં સિંહ અને દીપડાઓ ઘૂસી આવતા હોય છે. એ જ પ્રકારની ઘટના ધારીના હાલરિયા ગામમાં બની છે. 2 સિંહો પશુઓના શિકાર કરવાના હેતુથી ગામમાં ઘૂસ્યા હતા. ગોપાલ ગૌશાળાની આસપાસ તેમણે ચક્કર લગાવ્યા હતા, પરંતુ સદભાગ્યે ગૌશાળાનો દરવાજો બંધ હોવાથી સિંહો અંદર પ્રવેશી શક્યા નહીં અને તેમને શિકાર કર્યા વગર જ પાછું ફરવું પડ્યું. પરંતુ આવી ઘટનાઓના કારણે ગ્રામજનો, ખેડૂતો અને ખેતમજૂરોમાં સૌથી વધુ ભયનો માહોલ જોવા મળે છે. લુબના બિલકુલ રાજન, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો જે પ્રકારથી આ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, ગૌશાળાની અંદર ગાયોમાં અફરાતફરી જોવા મળી હતી. સીસીટીવીમાં સમગ્ર ઘટના છે ગૌશાળાની તે કેદ થઈ છે. અન્ય સમાચાર, દ્વારકાથી ખંભાળિયામાં આંખલાનું દિલધડક રેસ્ક્યુ. પાણીની કેનાલમાં આંખલો ફસાયો હતો. જેસીબીની મદદથી આંખલાનું રેસ્ક્યુ કરાયું છે. 3 કલાકની ભારે જહેમત બાદ આંખલાનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે. દ્વારકા જામનગર હાઈવે પર ખંભાળિયા બાયપાસ પાસે પસાર થતી પાણીની પાઇપલાઇનની કેનાલમાં આંખલો ફસાયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ એનિમલ કેર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની ટીમ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું. તો જેસીબીની મદદથી આંખલાનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. દ્વારકાની આ સમગ્ર ઘટના પાણીની કેનાલમાં આંખલો ફસાયો હતો. તો 3 કલાકની ભારે જહેમત બાદ આંખલાનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું. રેસ્ક્યુની ટીમ ત્યાં પહોંચી હતી. ખંભાળિયામાં આંખલાનું દિલધડક રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતના મહિલા અને બાળ યુવા સમિતિના ચેરમેન તેમજ આઈસીડીએસ પ્રોગ્રામ ઓફિસર વચ્ચે રકઝક થઈ હતી, જે અંગે બંને પક્ષે જોરાવરનગર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસ ફરિયાદ ન લેતી હોવાનો મહિલા અને બાળ યુવા સમિતિના ચેરમેન નંદુબેન વાઘેલાએ આક્ષેપ કર્યો છે. સાથે જ અન્ન અને જળ ત્યાગ કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે. પ્રોગ્રામ ઓફિસર ભાવનાબેને જાતિ અપમાનિત કરી લાફો માર્યો હોવાનો પણ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. ચીડિયાબેને મને લાફો મારેલ ત્યાર હું તરત જ જોરાવર પોલીસ સ્ટેશને ગઈ. જોરાવર પોલીસ સ્ટેશને મને સંતોષ કારણ મારી અરજી સ્વીકારવામાં ન આવી કે મને કોઈ જવાબ આપેલો. તો મેં સ્ટાર્ટમાં મારા ડીડીઓ મેડમ જોડે ગઈ યાજ્ઞિક. તો સીધા જઈશું દિલ્હી. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष माननीय नितिन नबीन जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, भाजपा परिवार के अन्य सभी वरिष्ठजन, देश भर से आए कार्यकर्ता साथी, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम माननीय नितिन नबीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की
एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीते 1-1.5 वर्षों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का पर्व, अटल जी की 100वीं जन्म जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, ऐसे महापर्व हम मनाते रहे हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा, राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। साथियों, अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। इस सदी में वेंकैया नायडू जी और नितिन गडकरी जी सहित हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने संगठन को विस्तार दिया है। राजनाथ जी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। फिर अमित भाई के नेतृत्व में देश के अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी। लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। फिर जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और सशक्त हुई। केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनी। मैं पूर्व के सभी अध्यक्षों का उनके अमूल्य योगदान के लिए देश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जानते हैं आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा
कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है, वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो, या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जो जिम्मेवारी मिली, अपने आप को उन्होंने साबित किया है। जिम्मेवारी देने वालों को भी उनके कार्य ने गर्व से भर दिया है। साथियों, ये 21वीं सदी है और देखते ही देखते 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष तो पूरे भी हो चुके हैं। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का
लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। साथियों, इस वर्ष जनसंघ की स्थापना को 75 वर्ष हो रहे हैं और मैं आज इन 75 वर्ष लगातार लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने, अनेक परिवारों ने, अनेक पीढ़ियों ने जो त्याग, तपस्या और बलिदान दिए हैं, मैं उनको आदरपूर्वक नमन करता हूं। जनसंघ रूपी वटवृक्ष से ही भाजपा का जन्म हुआ और भाजपा दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है। और ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है, इतना नहीं है। देश के राजनीतिक समीक्षकों को, दुनिया को यह बात बतानी चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी रगों में इसकी मजबूती से लोकतंत्र चल रहा है, कि जहां दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। साथियों, बीजेपी एक संस्कार है, बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी एक ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं, प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं बदलते। नेतृत्व बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती। साथियों, भाजपा का स्वरूप नेशनल है, भाजपा का स्पिरिट नेशनल है, क्योंकि हमारा जुड़ाव लोकल है। हमारी जड़ें जमीन के नीचे गहरी हैं। इसलिए भाजपा रीजनल एस्पिरेशन को प्लेटफॉर्म देती है, उन्हें नेशनल एम्बिशंस का आधार बनाती है। और इसलिए आज देश के कोने कोने के लोग भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो भी अपनी राजनीति का प्रारंभ करना चाहता है, उसको भी भाजपा का प्रवेश द्वार सबसे उत्तम, सबसे सुरक्षित लगता है। साथियों, जनता जनार्दन की सेवा ये हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रही है। हमने सत्ता को सुख का नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। इसलिए
भाजपा पर जनता का विश्वास निरंतर मजबूत होता गया है। अगर बीते 11 वर्षों की ही बात करें तो भाजपा की यात्रा जन विश्वास अर्जित करने की अद्भुत यात्रा रही है। बीते 11 वर्षों में बीजेपी ने हरियाणा, असम, त्रिपुरा और ओडिशा में पहली बार अपने सामर्थ्य से सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भाजपा जनता की एक बड़ी आवाज बनकर उभरी है। अक्सर होता यह है कि लंबे कार्यकाल के बाद सरकारों के लिए टिके रहना मुश्किल होता है, लेकिन बीजेपी ने इस ट्रेंड को भी तोड़ दिया है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, इन सभी राज्यों में कई कार्यकाल के बावजूद बीजेपी पहले से भी बड़े जनादेश के साथ सरकार में लौटी है। साथियों, बीते 1.5-2 वर्षों में तो भाजपा पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। विधानसभा हो या स्थानीय निकाय, बीजेपी की स्ट्राइक रेट अभूतपूर्व रही है। इस दौरान देश में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 4 चुनाव बीजेपी एनडीए ने जीते हैं। साथियों, आज भाजपा सिर्फ संसद और विधानसभा की नहीं, बल्कि नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी पहली पसंद है। और इसका ताजा उदाहरण अभी हमारा महाराष्ट्र है। हाल में जो मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम सामने आए, अभूतपूर्व है। बीजेपी महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में नंबर 1 पार्टी बनी है। कुल 29 में से 25 बड़े शहरों की जनता ने बीजेपी एनडीए को चुना है। कुल जितने पार्षद जीते हैं, उनमें से 50% बीजेपी के हैं। ऐसे ही केरला में भी आज बीजेपी के करीब 100 पार्षद हैं। केरला की राजधानी तिरुअनंतपुरम की जनता ने मेयर चुनाव में 45 साल बाद लेफ्ट से सत्ता छीनी और भाजपा पर भरोसा किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी लोग केरला में बीजेपी को अवसर जरूर देंगे। साथियों, बीजेपी निरंतर जीत रही है, उसका विस्तार हो रहा है। ये निश्चित तौर पर हम सभी के लिए गर्व का विषय है, लेकिन हम ये सभी के लिए बहुत बड़े दायित्व का बोध भी है और दायित्व बोध का समय भी है। कभी भाजपा ने पार्टी विद अ डिफरेंस के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। आज बीजेपी पार्टी ऑफ गवर्नेंस भी है।
देश ने के आजादी के बाद शासन के अलग अलग मॉडल देखे हैं। कांग्रेस के परिवारवाद का मॉडल, लेप का मॉडल, क्षेत्रीय दलों का मॉडल, अस्थिर सरकारों का दौर, ये सब मॉडल देख चुका है। लेकिन आज देश स्थिरता, सुशासन और संवेदनशीलता वाला भाजपा का विकास मॉडल देख रहा है। साथियों, ये भाजपा ही है जिसने सामाजिक न्याय के नारे को सच्चे स्वरूप में जमीन पर उतारा है। हमने गरीब कल्याण की योजनाओं को सरकारी फाइलों से निकालकर गरीब के घर तक पहुंचाया है। साथियों, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आजादी के 70 वर्ष बाद सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक ही पाइप से पानी पहुंच पाया था। माताओं बहनों की पीड़ा, पानी के लिए उनके संघर्ष की सूध लेने वाला कोई नहीं था। और मुझे याद है, मैं जब गुजरात में राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आया था, सामाजिक जीवन में काम करता था, तो हमारे यहाँ एक धंधुका करके स्थान है, वहां मैं जाता था तो वो मुझे वहां के लोग कहते थे कि आप यहां रात को मत रुकिए और जब भी आपका दौरा हो तो सुबह 10 बजे के बाद आइए। नॉर्मली मेरा नेचर रहता था कि हर नए स्थान पर जाकर रात को रुकूं, कार्यकर्ताओं से मिलूं, लेकिन धंधुका वाले मना करते थे। क्यों? वो कहते पानी नहीं है, सुबह हम आपको स्नान करने के लिए पानी नहीं दे पाएंगे। वहां तो कहावत चलती थी कि बेटी को बंदूकें दो लेकिन धंधुके मत दो, यानी उसको बंदूक लगा मार दो लेकिन धंधुके में शादी मत करो। पानी नहीं था। ये दर्द मैंने देखा है। मैं धरती की सच्चाई से जुड़ा था। माताओं बहनों की पीड़ा अपनी आंखों के सामने देखी थी और तब हम जल जीवन मिशन लेकर आए और सिर्फ 5-6 साल में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल की सुविधा से जोड़ा। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने धुएं से बीमार होती बहनों की पीड़ा समझी, वरना पहले तो एलपीजी गैस को भी अमीरों का ही सौभाग्य मान लिया गया था। भाजपा ने पूरी संवेदनशीलता के साथ हर घर को एलपीजी गैस कनेक्शन से जोड़ने का अभियान चलाया। वर्ष 2014 तक जहां सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, आज देश में 33 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन है। ऐसे ही गांव की बहनों को लखपति दीदी बनाने का अभियान है। यह भी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भाजपा बहनों बेटियों के सपनों के प्रति संवेदनशील है। साथियों, एक जमाना था हम भी सुनते थे कि फलाना परिवार वो तो लखपति परिवार है, ढीकना परिवार लखपति परिवार है, यानी लखपति होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी।
ये मोदी है जो सपने देखता है कि मेरे गांव की गरीब मां भी लखपति दीदी बनेगी। साथियों, दशकों तक आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक से जोड़कर देखा गया, लेकिन संवेदनशील भाजपा ने, भाजपा के हमारे संस्कारों ने समाज के प्रति समान भाव की हमारी परंपरा के कारण भाजपा ने आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की पीड़ा को समझा, उनके विकास के लिए पीएम जनमन योजना बनाई और पीएम जनमन योजना के लाभार्थी इतने बिखरे हुए हैं और एक दो दूर दूर जंगलों में पड़े हैं। उनसे एक म्युनिसिपैलिटी की सीट भी जीती नहीं जा सकती है। वोट के हिसाब से कोई उनकी तरफ देखेगा नहीं, लेकिन जब वोट से ऊपर उठ करके संवेदनाएं होती हैं, समाज का कल्याण हमारे संस्कार होते हैं, तो पीएम जनमन योजना जन्म लेती है। आदिवासियों में भी अति पिछड़ा संख्या में भले ही कम है, लेकिन उनके प्रति हमारी संवेदना में कोई कमी नहीं है। साथियों, हमारा नॉर्थ ईस्ट, वहां वोटर उतने नहीं है, सीट भी उतनी नहीं है, इसलिए कांग्रेस की सरकारों में उन्हें बरसों तक उपेक्षित रखा गया। लेकिन संवेदनशील भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट को दिल से भी जोड़ा और दिल्ली से भी जोड़ा। एक और उदाहरण आकांक्षी जिलों का है। हमारे देश में 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिनको कांग्रेस सरकारें पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। इन जिलों को पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी जिन अधिकारियों को सजा देनी होती थी तो उन्हें वहां भेजा जाता था। हमारी भाजपा सरकार ने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और प्राथमिकता के आधार पर इनके विकास के लिए काम किया। आज ये आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर अन्य जिलों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य की एवरेज की बराबरी आकर के खड़े हो गए। साथियों, भाजपा का मंत्र है पिछड़ों को प्राथमिकता, पिछड़ों को प्राथमिकता। जिनकी किसी ने सूद नहीं ली, हमने उनकी साधना की है। जिनको किसी ने पूछा नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमारी कार्य संस्कृति सर्वसमावेशी है, सर्वांगीण है, सर्वस्पर्शी है, सर्वहितकारी है, सर्व कल्याणकारी है। और ये कार्य संस्कृति गरीब को समान अवसर देने वाली है, गरीब को सशक्त करने वाली है। इसी वजह से सिर्फ एक दशक में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को पराजित किया है। और ये 25 करोड़ लोग कौन हैं? इनमें सबसे अधिक दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार है। साथियों, बीते वर्षों में जन विश्वास की जो पूंजी हमने अर्जित की है, उस भरोसे को कायम रखना बहुत बड़ी जरूरत है। देश की जनता
2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। इसलिए बीते 11 वर्षों में रिफॉर्म्स की जो यात्रा हमने शुरू की है, वो अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुकी है। हमें राज्यों के स्तर पर, शहर की इकाइयों के स्तर पर, जहां भी भाजपा एनडीए सरकारें हैं, वहां रिफॉर्म्स की गति तेज करनी है। भाजपा सिटी गवर्नेंस का भी एक नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत कर रही है। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, जब हम सत्ता में नहीं भी थे, तब भी हम अपने मूल आदर्शों से कभी नहीं भटके। हम राष्ट्र प्रथम के भाव से, नेशन फर्स्ट के भाव से डटे रहे, जूझते रहे, संकटों को झेलते रहे, जज्बात बढ़ाते रहे और जीतते भी रहे। हम वो लोग हैं, हमारा वो चरित्र है, हमारे वो संस्कार है। खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये भाजपा के हर कार्यकर्ता का संस्कार है, भाजपा के हर कार्यकर्ता का जीवन मंत्र है। इसी भाव के साथ बीते 11 वर्षों में हमने अनेक चुनौतियों पर विजय पाई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की दीवार गिराना हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना हो, इनको कभी असंभव माना जाता था। आज ये हकीकत बन चुके हैं। आज देश में माओवादी आतंक भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। साथियों, आगे भी हमें हर चुनौती का पूरे सामर्थ्य से सामना करना है। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है, आबादी के असंतुलन की है। दुनिया के धनवान देश, समर्थ देश, वे भी अपने देश में जो घुसपैठिए हैं, उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हैं। और दुनिया उनको पूछती नहीं है कि तुम घुसपैठियों को क्यों निकाल रहे हो। तुम तो लोकतंत्र का झंडा लेकर के घूम रहे थे, तुम तो पूरे दुनिया के नवाब बन के बैठे थे, क्यों निकाल रहे हो। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं,
या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा, उनको एक्सपोज करना ही होगा। साथियों, एक और बड़ी चुनौती अर्बन नक्सल की भी है। अर्बन नक्सल का दायरा इंटरनेशनल हो रहा है और यहां अर्बन नक्सल की बड़ी चतुराई होती है। ये यहां मीडिया वाले इतने बैठे हैं ना, अगर साल में एकाध बार भी अगर मोदी की किसी अच्छी चीज को उन्होंने ट्वीट कर दिया या टीवी पे बोल दिया या अखबार में लिख दिया, तो उस पत्रकारी तो ऐसी फजेत कर देते, उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, उसको अछूत बना देते हैं, भविष्य में वो कभी बोल ना सके ऐसा कर देते हैं। ये अर्बन नक्सल की स्टाइल है। हमको भी सालों तक ऐसा अछूत बना के रख दिया पूरे देश में भाजपा को। अब देश समझ गया है अर्बन नक्सलों के कारनामे। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अर्बन नक्सली लगातार તો બીજેપીને મળ્યા છે નવા કેપ્ટન ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષના નામની જાહેરાત નીતિન નબીબને તેમના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે તેમની નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે ને ભાજપના મુખ્ય કાર્યાલય ખાતે જે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ને આ કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીએ સંબોધન કર્યું છે। બીજેપીમાં હવે નવીન યુગ ચાલશે કારણ કે યુવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ભાજપના ઇતિહાસમાં આ પ્રથમ વખત કે એક યુવા ચહેરાને અહીં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે। સાથે જ વાત કરીએ નીતિન નબીબ કે જેઓ બિહારથી બિલોંગ કરે છે ને સાથે જ નીતિન નબીબ એક એવી છબી કે યુવા ચહેરા એવા છે કે જે બિહારમાં તો પ્રખ્યાત છે પરંતુ સાથે સાથે અન્ય રાજ્યોમાં પણ તેમની ખૂબ જ સારી એવી છબી રહી છે। ખાસ તો વાત કરીએ છત્તીસગઢની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં તેઓ પ્રભારી તરીકે તેમની જે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી તેમણે ખૂબ જ સારી રીતે પોતાનું કાર્ય કર્યું છે અને તેથી જ છત્તીસગઢનું જે પરિણામ આવ્યું હતું તે પરિણામ પર ખૂબ જ પ્રચંડ જીત છત્તીસગઢમાં મેળવી હતી।